Hi, this is Educational Analytics, and in this video we are going to discuss about the special cases of LPP in operational research. In the previous videos we have already discussed some methods to solve LPP in operational research, which includes the graphical method, algebraic method, and simplex method. In this video, we are discussing about some special types of the problems which are solved by simplex method. Let's start our video. In special cases, there are some special types of LP model, which are first one is a degeneracy case, and the second one is alternating optima, and unbounded solution, and infeasible solution. In this video, we are just discussing about the degeneracy case, and we solve a problem which show degeneracy in operational research. First of all, we are discussing about the degeneracy. What is meant by degeneracy? Degeneracy means there is at least one redundant constraints. Redundant means an extra constraints which have no effect on the LP model. Redundant means extra which has no effect in the LP model. So we can remove that constraint to reduce the extra effort on that constraint. But there is a limitation because we have no proper method to identify which constraint is redundant. So by using a graphical method, we have a graph where we can see easily which constraint have no effect on the LP model. But if we are using algebraic method or any simplex method, we have no proper way to identify which constraint is redundant. So there is no proper way to remove that constraint. But we can analyze, we can see there exists an degeneracy. When degeneracy appears, degeneracy appears when there have some same minimum ratio in iterative table. Means if we have same minimum ratios, then we have degeneracy in that LP model. The next one is the limitation. What are the limitations of degeneracy? Basically there is no way to find out which constraint is redundant, as we have already explained. So we have just to see the degeneracy but cannot remove that constraint. So let's we solve a problem which will show our degeneracy in the solution. Okay students, so we have example of degeneracy. Solve that the given LPP, which is a maximum of z equal to 3x plus 9y, subjected to these constraints x plus 4y less than or equal to 8 and x plus 2y less than or equal to 4, and similarly x and y always पॉजिटिव. इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे. सो व्हेन वी राइट इट इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म, वी विल introduce here a slack variable s1 and s2 in the second constant. So x plus 4y plus s1 is equal to 8, and the second one is x plus 2y plus s2 equal to 4. यहाँ पे हमारे पास x, y, s1 और s2 all variables are positive. So x, y, s1, s2 greater than equal to 0. चूंकि हमारे पास ये जो मॉडल है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया, तो हम इससे टेबल बना सकते हैं. टेबल के लिए हम क्या कर सकते हैं कि बेसिक में z, साथ में s1 और s2, बाद में हमारे पास नॉन बेसिक में आ जाएंगे x, y, s1, s2 एंड सोल्यूशन. टेबल को डिजाइन करने के लिए हमारे पास -3, -9 एंड 0 0 एंड सोल्यूशन इज आल्सो 0, क्योंकि यहाँ पे कोई कांस्टेंट नंबर नहीं है. सेकंड कांस्टेंट के लिए हमारे पास 1 4 1 0 और 8, तो ये 1 4 1 0 8. द थर्ड सेकंड कांस्टेंट इज 1 2 0 1 4, तो ये हमारे पास आ गया 1 2 0 1 4. यहाँ पे हम देखें चूंकि हमारे पास क्वेश्चन जो है वो मैक्सिमम का है, सो इसके लिए हमारे पास ग्रेटेस्ट पॉजिटिव नंबर हमने देखना है, तो हमारे पास 9 है. इसका मतलब है कि y जो है ये एंटरिंग वेरिएबल है. इसके साथ हम सोल्यूशन की रेशियो फाइंड करेंगे, तो 8 डिवाइडेड बाय 4 दिट विल बी इक्वल टू 2 एंड 4 डिवाइडेड बाय 2 दिस विल बी इक्वल टू 2. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास दोनों रेशियोज सेम है. सो इट मीन्स देयर एग्जिस्ट डीजेनरेसी.
ठीक है, अब ये हमारे हम यहाँ से पता चल गया कि यहाँ पे डीजेनरेसी एग्जिस्ट करती है, बट यहाँ पे हमें ये नहीं कह सकते कि कौन सी कॉन्स्टेंट हमारे पास रिडल्टेंट है या कौन सी कॉन्स्टेंट हमारे पास एक्स्ट्रा है। बट अगर हम ग्राफिकली इसको सॉल्व करेंगे तो हमें देखेंगे कि ग्राफ में एक कांस्टेंट, एक लाइन हमें बिल्कुल एक्स्ट्रा शो हो रही है, उसका कोई इफेक्ट एलपी मॉडल पे नहीं आ रहा, तो वहां पे हम उसको रिमूव कर सकते हैं। बट व्हेन वी आर सॉल्विंग आवर प्रॉब्लम बाय यूजिंग सिंप्लेक्स मेथड और एनी अदर लाइक बिग एम मेथड, तो उस केस में हमारे पास कोई ऐसा प्रॉपर वे नहीं है कि जिसे हम आइडेंटिफाई कर लें कि विच कांस्टेंट इज रिडल्टेंट। सो वी जस्ट सॉल्व दिस एलपी मॉडल। यहाँ पे हमारे पास चूंकि दोनों ही सेम रेशियोज हैं तो हम इसमें से कोई भी रेशियो ले सकते हैं। लेट्स से कि हम फर्स्ट वाली रेशियो ले लेते हैं, नो डाउट हम सेकंड वाली लेंगे तब भी हमारे पास आंसर सेम आएगा। हम फर्स्ट वाली रेशियो ले लेते हैं तो इसका मतलब है कि S1 हमारा लिविंग वेरिएबल हो जाएगा, तो नेक्स्ट आइटरेशन में हमारा S1 की जगह पे Y होगा। सो हम इसको देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट जो टेबल बनेगा उसमें बेसिक में Z की जगह S1 की जगह पे Y और S2 एज इट इज। टेबल को बनाने के लिए हम नॉन बेसिक का बना लिया और साथ में हमने चूंकि हमने यहाँ पे y को इंट्रोड्यूस कराया तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमने 1 लेके आना है। तो इसको 1 करने के लिए हम इस पूरी रो को 4 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1/4 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1/4, यहाँ पे चूंकि 0/4 0 ही होगा और 8/4 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखें तो ये 1/4 1 1/4 0 2। अब हमने देखना है कि इसके ऊपर भी हमने 0 बना लेना है और इसके नीचे भी 0 बना लेना है। ठीक है, तो इसको 0 करने के लिए हम क्या करते हैं, हम +9 टाइम y को हम z वाली रो में ऐड कर देते हैं, यानी इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। जैसा कि हम देखें तो यहाँ पे -3 था, +9 टाइम ये वाला एलिमेंट, दिस विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, सॉरी ये 0 तो नहीं होता, देयर इज अ मिस्टेक, तो इस मिस्टेक को हम सॉल्व कर लेते हैं। सिमिलरली यहाँ पे देखें तो ये -9 ऑलरेडी पहले मौजूद था, +9 टाइम ये वाला एंट्री, तो ये इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ पे 0 पहले से मौजूद था, +9 टाइम 1/4, तो दिस विल इक्वल टू 9/4 होगा। ठीक है, ये 9/4 हम इसको सॉल्व कर लेते हैं अभी, और ये हमारे पास 0 हो जाएगा। सिमिलरली ये हमारे पास 0 पहले से मौजूद है, 9 टाइम 2, तो दिस विल बी इक्वल टू 18। सिमिलरली हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास 1 - 2 टाइम, चूंकि यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे हम इस वाली रो को 0 करने के लिए हम 2 टाइम ये वाली रो इसमें ऐड कर देते हैं, तो इसका मतलब है कि 1 एज इट इज -2 टाइम 1/4, ये वाला 2 यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है, -2 टाइम ये वाली एंट्री, 0 ऑलरेडी पहले से मौजूद है, -2 टाइम ये वाली एंट्री, 1 पहले से मौजूद है, -2 टाइम ये 0, और 4 पहले से मौजूद है, -2 टाइम दिस एंट्री। तो ये तो ठीक है, सिर्फ ये ऊपर वाले में प्रॉब्लम थी तो इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली इसने सॉल्व तो भी कर दिया। ठीक है, ये जस्ट मिस्टेक थी यहाँ पे लिखने में, बाकी हमारे पास जो क्वेश्चन सॉल्व किया वो सेम है। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो 3/4 आंसर आ गया, 0 9/4 0 और 18, और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1/2 0 -1/2 1 और 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो एंट्रिंग वेरिएबल है, चूंकि हमने नेगेटिव आंसर देखना, तो नेगेटिव हमारे पास सिर्फ ये एक ही है, तो इसका मतलब है कि x हमारे पास एंट्रिंग वेरिएबल हो गया। मिनिमम रेशियो फाइंड करेंगे तो देखें इसके साथ रेशियो निकाले तो 0 ओवर ये दिस, तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये वाला एंट्री मिनिमम है, इसका मतलब है कि यही हमारा लिविंग वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि जब हमने लास्ट वाली जो आइट्रेशन में अगर हम इसको भी चूज कर लेते मिनिमम रेशियो, तो ये ऊपर वाला 0 हो जाना था। ठीक है, तो फिर ऑब्वियसली हमें इसको दोबारा रिमूव करना, एंट्रिंग वेरिएबल लिविंग वेरिएबल के तौर पे यूज करना था। ठीक है, तो नो डाउट आप जो सा मर्जी ले लेंगे तो आपका आंसर दोनों में सेम आएगा। तो उसका मतलब ये हुआ कि नेक्स्ट आइट्रेशन में हमारे पास ये वाला लिविंग वेरिएबल बन गया और ये वाला एंट्रिंग वेरिएबल। नेक्स्ट आइट्रेशन में बेसिक लिखेंगे तो z y x। उसके बाद हम देखें तो इस वाली रो को हमने इस वाली एंट्री को 1 बनाना है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करें पूरी लाइन को, तो इससे क्या बन जाएगा, ये 1 ये 0 -1 2 और ये 0। देखा जाए तो हमारे पास 1 0 -1 2 0। ठीक है, अब इसके ऊपर हमने इसको भी 0 बनाना है और इसको भी 0 बनाना है, तो ऑब्वियसली गॉस जॉर्डन मेथड जिस तरह हमने पीछे लगाया है उसको भी हम ऐसे कर लेते हैं कि -3/4 पहले से मौजूद था। ठीक है, प्लस 3/4 मल्टीप्लाई बाय दिस एंट्री। ठीक है, देखें ना यहाँ पे -3/4 था, तो +3/4 करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को हमने वही काम कर दिया, 0 पहले से मौजूद था, +3/4 इंटू दिस एंट्री, 9/4 पहले से मौजूद था, +3/4 इंटू दिस एंट्री,
0 पहले से मौजूद था प्लस 3/4 इंटू दिस एंट्री, 18 पहले से मौजूद था प्लस 3/4 इंटू दिस एंट्री। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा। सिमिलरली हमने y के लिए भी ऐसे ही कर लिया। y के लिए हम इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, -1/4 दिस रो, -1/4 दिस पूरी रो। ओके, तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 0 0 3/2 18, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 1 1/2 -1/2 0 -1/2 2। यहाँ पे देखें तो हमारे पास कोई भी नेगेटिव एंट्री मौजूद नहीं है, सो इसका मतलब है कि ये हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन है। नो नेगेटिव कोएफिशिएंट इन z रो, सो द लास्ट सोल्यूशन इज ऑप्टिमल विद मैक्सिमम z इज इक्वल टू 18 एंड y एट y इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास डीजेनरेसी का केस था। डीजेनरेसी का बेसिकली मैं दोबारा आपको मीनिंग समझाऊं तो हम ये कह सकते हैं कि डीजेनरेसी एक ऐसा केस होता है जिसमें हमारे पास जो कांस्टेंट होती है वो रिडल्टेंट होती है। फॉर एग्जांपल जब हम ये ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक कांस्टेंट थी, ठीक है, एक हमारे पास ये कांस्टेंट थी, ठीक है, हमारा जो फिजिबल रीजन आया वो सपोज कर लें ये वाला आया, ठीक है। तो इस कांस्टेंट में देखें तो हमारे पास ये वाला एक पॉइंट बनता है, एक ये पॉइंट बनता है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास कुछ आंसर आ सकता है या इसमें आ सकता है, मींस यहाँ पे हमारा या मैक्सिमम होगा या हमारा आंसर यहाँ पे मैक्सिमम होगा, ठीक है। लेकिन देखा जाए तो ये जो दूसरी कांस्टेंट है ये वाली, इसका कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा इसके ऊपर, ठीक है। हमारा जो ऑप्टिमल सोल्यूशन है वो इस रीजन के अंदर आ रहा है, ठीक है। लेकिन जो दूसरी कांस्टेंट है जिसको हम L2 कर कह दें, इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि ये जो कांस्टेंट है हमारी, ये बेसिकली रिडल्टेंट इक्वेशन है, रिडल्टेंट कांस्टेंट है, ठीक है। तो हम इसको इजीली रिमूव कर सकते हैं बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। लेकिन जब हम 3 वेरिएबल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें ऑब्वियसली हम ग्राफिकल मेथड को यूज़ करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो इसलिए हम 3 वेरिएबल प्रॉब्लम में रिडल्टेंट कांस्टेंट को आइडेंटिफाई करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम ये एनालाइज कर लेते हैं कि यहाँ पे एटलीस्ट वन कांस्टेंट रिडल्टेंट है। जब हम ये देख लेते हैं कि कोई कांस्टेंट रिडल्टेंट है तो फिर हम क्या करते हैं, फिर अगर तो उसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं तो हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करके रिडल्टेंट कांस्टेंट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अगर हम उसको नहीं सॉल्व कर सकते तो फिर हम अपने मॉडल को रीडिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हम इसको किस तरह मज़ीद ऑप्टिमल या किस तरह मज़ीद हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा डीजेनरेसी का केस, जिसमें हम ये देखते हैं कि कोई कांस्टेंट हमारे पास ऐसी हमने लगाई हुई है कि जिसका कोई हमारे एलपी मॉडल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, तो उसको हम रिमूव कर सकते हैं अगर हम उसको रिमूव करना चाहें, और अगर हम नहीं भी करते तो उसको हम सॉल्व